Good morning, Prabhas. Raise your hand. So, in this class, we are going to take paper solution of test number 5. टेस्ट 5 का पेपर सॉल्यूशन हम आज की क्लास में लेंगे। मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन। आराध्या, गुड मॉर्निंग। I am audible, ma'am. Yes, you are audible. Aradhya, let's solve the question. How? Here is the first question of odd man out. Yes, ma'am. Just a minute, okay? Just 1 minute. Just a minute, just a minute. Is it visible now? No, yes, ma'am. Okay. So tell me, where is the answer in this question? Then option number 4. Option number 4, ma'am. Yes, option D is the answer because in each option there are two petals, one outside and one in the center, but not in option number 4. So option 4, option D is the answer. Next question, question number 2. Ma'am, this option in all Okay. figures, that point is Pointing towards figure. each other. All. But Yes. These arrows are yes, ma'am. pointing towards each other in each option except A. So option A is the correct answer. Question number 3. Ma'am, because that in option number D figure, that unshaded petal is joined. Yes. In each question figure, the unshaded petals are in the outside, but in option number D, they are inside. That's why option D is the answer. These are inside. So D is the answer. Yes. Next question, question number 5. Ma'am, screen is no connection is coming. Okay, so there will be internet issue. Okay. Devika Verma से बात Hello, करते ma'am. Audible? Yes, yes. The screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So what will be the answer of this question? This is the question of odd man out. Ma'am, option number C, because A, B and D option all are same. Okay. We have to check the position of the line and the shaded dot in this question. So option C is the answer. Question number 5. Ma'am, this is mirror imaging question. No, Sorry, no. mirror Figure. matching. Matching figure. Ma'am, option number C. Yes, option C is the answer. Very good. Question number 6.
Ma'am, Option D is the answer. Good. Next question. Question number 7. ma'am, my answer is option number D. D is the answer and it's right. Question number 8. Ma'am, option number A. Option A is the answer. Very good. This is the question of pattern completion. Yes, ma'am. Ma'am, figure are rotating through 90 degree. मतलब first figure. If we rotate the first part through 90 degree, we will get the second part. So if we rotate the third part through 90 degree, we will get our answer, which is Fourth part. मतलब option number D. B. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए प्लस के साइन इस एंगल में है, तो यहाँ पर आएंगे प्लस के साइन. यहाँ पर सर्कल्स है, तो ये सर्कल्स हमें यहाँ पर मिलेंगे. इस तरह से पोजीशन ऑप्शन. Just a minute. Ma'am, rotation, not mirror image. Yes. It's rotation. रोटेशन है तो रोटेट करने के बाद हमें, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद प्लस के साइन यहाँ पर और सर्कल्स यहाँ पर मिलेंगे. इट इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. व्हाट इज इट? एंटी. क्योंकि यहाँ पर तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ हम कह सकते इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट, लेकिन अगर हम थर्ड पार्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. सो वी हैव टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Ma'am, option number B is correct. And what is the reason? Ma'am, because first figure में जो arrow है ना वो rotate हो रहा है तो second figure बन रही है ना. Yes. अगर हम फर्स्ट फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो सेकेंड पार्ट बन रहा है. सेकेंड पार्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो थर्ड पार्ट बनेगा, और थर्ड पार्ट 90 डिग्री रोटेट करेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी विल गेट द फोर्थ पार्ट. सो बी इज द आंसर. करेक्ट? Yes. Come to the next question, question number 11. It is also same as the previous question. Ma'am, option number C. Option number C. C is the answer. Yes. क्यों? क्योंकि अगर हम फर्स्ट पार्ट को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो सेकेंड पार्ट मिलेगा, सेकेंड पार्ट को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो थर्ड पार्ट मिलेगा, थर्ड पार्ट को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो फोर्थ पार्ट मिलेगा. और इसको और एक तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट if we rotate this second part through 180 degree, we will get the third part. So we have to rotate the first part through 180 degree, so we will get the fourth part. 180 डिग्री का रोटेशन भी ऑपोजिट पार्ट्स में हम बता सकते हैं, बट द आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. इट इज आल्सो पैटर्न कंप्लीशन क्वेश्चन. मैम, फर्स्ट फिगर का ना मिरर इमेज सेकंड फिगर है तो फोर्थ फिगर का हमें मिरर इमेज निकालना पड़ेगा. Then where is the mirror image of the fourth part? Ma'am, option number A. Yes, A is the correct answer. And also we can say that the water reflection of the second part is the fourth part. So the water reflection of the first part will be the third part. मतलब दोनों होते हैं यहाँ पर, मिरर भी होता है और वाटर भी होता है, राइट? Yes, ma'am.
A is the answer. Here is the answer. Now, come to the next question. Question number 13. मैम फर्स्ट फिगर में जो प्लस का सिंबल है वही सेकंड फिगर में है ना, इसीलिए अब थर्ड फिगर में जो ट्रायंगल है वही फोर्थ फिगर में होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा. So the first part and second part are identical. So third Yes. part and fourth part will be identical. So option A is the correct answer. Identical का यूज बहुत कम क्वेश्चंस में होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बोथ पार्ट्स आर आइडेंटिकल का ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल रहा है. अब है सीरीज. मैम फर्स्ट फिगर में सिर्फ सर्कल में ना एक ही लाइन थी, बाद में 2 लाइन बढ़ाई है, और बाद में एक ट्रायंगल दिया है, नोट स्क्वायर दिया है, उसमें भी एक ही लाइन है, तो हमें अब 2 लाइन बढ़ानी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा. पहले एक लाइन था, फिर 1, 2 और 3 लाइन ऐड किए हैं. हाँ 3. यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइन इन द डायमंड स्ट्रक्चर, so we have to add 3 lines, so option B is the answer. Yes. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 15. मैम ए एंड एफ में ना 5 का डिफरेंस है, और बाद में एफ और के में भी ना 5 का डिफरेंट है, तो 5 के आगे 5th नंबर आने पर पी आता है ना, इसीलिए पी अपना आंसर होगा. डी ऑप्शन. ऑप्शन डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम फर्स्ट फिगर को ना 90 डिग्री रोटेट किया है, और जो ट्रायंगल में शेड था वहां पर सिर्फ ऐसे लाइंस किए हैं, तो हमें थर्ड फिगर को भी रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री. So if we rotate the first figure 90 degree in the clockwise direction, we will get the second figure. Second figure को भी हम clockwise direction में 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो थर्ड फिगर मिल रहा है, तो इसे भी हमें 90 डिग्री रोटेट करना होगा through the clockwise direction. So we will get the answer. So where is it? ऑप्शन नंबर ए. Option A is the correct answer. Next question number 17. मैम फर्स्ट फिगर में ना बी दिया है, और सेकंड फिगर में मैम ये एनालॉजी है. ये एनालॉजी का क्वेश्चन है. करेक्ट, वेरी. पहले तो ये देखना चाहिए, क्योंकि एनालॉजी और फिगर सीरीज कंप्लीशन में कभी कभी होता है, क्वेश्चन देखने में गलती हो जाती है. बताइए. मैम फर्स्ट फिगर में ना सिर्फ एक बी दिया है, और सेकंड फिगर में बी का मिरर इमेज दिया है उसके सामने ही, तो एज इट इज लिखा है, लेकिन ऑपोजिट साइड पर बी का मिरर रिफ्लेक्शन ऐड किया है. यस. तो ई का ना मिरर इमेज और ई दिखाएंगे फोर्थ फिगर में, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा. ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. मैम फर्स्ट फिगर में जो फर्स्ट 2 आर के जैसे सिंबल है ना, और नीचे 2 सर्कल है, वो नीचे के 2 सर्कल ना ऊपर के साइड जा रहे हैं, और वो 2 आर के सिंबल एक तो उल्टा हो गया है, और एक वैसे का वैसे ही दिया है, इसीलिए हमें थर्ड फिगर का भी वैसे करना पड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर तो सबसे पहले तो जो नीचे 2 प्लस के साइन है वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर के वी साइन है वो नीचे आएंगे, उसमें से राइट वी एज इट इज आएगा, और जो लेफ्ट साइड का वी है उसको करना होगा हमें रोटेट थ्रू 180 डिग्री. यस. सो वेयर इज इट?
Option number D. So option D is the correct answer. Next question, question number 19. मैम फर्स्ट फिगर का ना 180 डिग्री रोटेशन है, सेकंड फिगर तो थर्ड फिगर का रोटेशन करना पड़ेगा हमें, थर्ड फिगर को रोटेट करना पड़ेगा। कितनी डिग्री रोटेशन है? हाउ मच डिग्री बेटा? मैम 180 डिग्री। नो, 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर कोई एरो इस तरफ जा रहा है तो इस तरह से बन जाएगा, अगर 180 करेंगे तो। ओह, अगर एरो इस तरह से है और यहाँ पर जा रहा है सो इट इज 90 डिग्री। हाँ करेक्ट है मैम, 90 डिग्री Yes. एंटी क्लॉकवाइज। ये एरो हाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रोटेट कर रहा है, इट मीन्स इट इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। yes. Okay, so So ma'am option number C is correct. option C. What about the line in option number C? This one line. Which line ma'am? This one. Can you see which I highlighted? Yes ma'am. So what about this line? This line is changing their position. In the question figure, it is in the left side of the line, and in the answer figure, it is on the right side. So it is being mirror reflection. Yeah, it's also wrong. So ma'am, what is Is it? answer? I don't understand. So option is C, but it is not 90 degree rotation, it is mirror reflection. उसका सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है वो छोटे लाइन का, आप रोटेशन कर होता है जब देखिए आपने एक हाथ लाइन इस तरह से ले लिया, यहाँ पर मिरर लगा दिया और इसका अगर मिरर रिफ्लेक्शन किया तो इस लाइन का पोजीशन चेंज हो जाता है इन मिरर रिफ्लेक्शन। बट अगर हम सिर्फ 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री रोटेशन में ये जो लाइन है ये एज इट इज इस तरह से चला जाएगा। It Yes. is 90 rotation and it is mirror reflection. So we have to say that it's mirror reflection. Yeah ma'am. Come to the next question, question number 20. मैम फर्स्ट फिगर में जो अनशेडेड सर्कल है ना, सो सेकेंड फिगर में शेड करके 3 सर्कल दिए हैं और फोर्थ फिगर में एक ही ट्रायंगल है वो भी शेडेड है। तो नेक्स्ट फिगर में ना 3 ट्रायंगल हो गए पर वो अनशेडेड हो गए, सो ऑप्शन नंबर ए आएगा। वेरी गुड। शेडेड का अनशेडेड, अनशेडेड का शेडेड, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लेंशन। Yes, very good. So we have to highlight the borders. या अगर हाईलाइट नहीं भी करते हो तो भी इसे देखना है, इसका साइज यहाँ पर एक्यूरेट चेक करना है। So I am highlighting the broken edges. Now we have to choose the answer. Yes ma'am. Ma'am, option number C is correct. Not difference are so bigger. Okay. ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब आ है, आंसर है। आंसर है ऑप्शन डी। यस, इट्स करेक्ट। बहुत छोटी छोटी लाइंस को हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे ये वाली लाइन इतनी ही चाहिए आंसर फिगर में, विच इज हियर। ये वाली लाइन इतनी चाहिए, वो भी यहाँ पर सही है।
फिर ये वाली लाइन इतनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। फिर एक छोटा सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर सही है। तो इस तरह से एक एक लाइन का साइज ऑब्जर्व करना है और तब जाके आंसर हमें मिल जाएगा। उसके बाद एक इस तरह का लाइन है, वो भी यहाँ पर सही है, और ये छोटा सा लाइन ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि समझ लीजिए यहाँ पर इतना डिफरेंस दिया है, तो यहाँ पर कुछ इतना डिफरेंस रहेगा और ये जो लाइन है ये स्ट्रेट यहाँ पर बन जाएगी इस तरह से, राइट। तो अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये वाला डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में तो ये बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में सही है, ऑप्शन 2 में तो ये वाली जो लाइन है बहुत छोटी है, और ऑप्शन 3 में देखेंगे तो ये वाली लाइन बहुत ज्यादा लंबी है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें लेंथ चेक करना है, लाइंस का, एंगल का हमें साइड चेक करना है, तब जाके हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Ma'am, my answer is option number D. ओके, यहाँ पर बी और सी तो आंसर आएंगे नहीं, या तो ये मिलेगा या तो डी मिलेगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो एंगल बन रहा है एकदम बीच में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में नहीं है एंगल, इट इज ऑन द टॉपर साइड, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Ma'am, my answer is option number D. यस, क्योंकि ये वाली जो यहाँ पर कर्व लाइन बन रही है इस तरह से, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, सो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। Ma'am, option number A is correct. यू आर सीइंग ए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थोड़ा सा राइट साइड पे झुका हुआ है, ये वाला एंगल। तो आंसर फिगर में भी हमें ऐसा एंगल चाहिए जो थोड़ा सा राइट साइड में झुका हुआ हो, और ये वाला एंगल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। अब ऑप्शन 4 में बहुत बड़ा वाला एंगल दिया है, ऑप्शन 2 में जो एंगल है वो अंदर की तरफ दिया है, और ऑप्शन 3 में ये एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है विच इज डिफरेंट देन द क्वेश्चन फिगर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। Ma'am, it is mirror image question. Yes. So, ma'am, option number A is correct. You are saying A। सबसे पहले तो इसका सीक्वेंस उल्टा होना चाहिए, A F N A N, A F N A N, A F N A N, A F N A N यहाँ पर नहीं बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, सो ऑप्शन सी एलिमिनेटेड। फिर उसके बाद हर एक लेटर का मिरर रिफ्लेक्शन बनना चाहिए, इसमें ऑप्शन ए का वाटर रिफ्लेक्शन बना दिया है, यहाँ पर एन का रिफ्लेक्शन बनाया ही नहीं है और एफ का भी रिफ्लेक्शन नहीं बनाया है, एज इट इज रखा है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Ma'am, my answer is option number A. Okay, you are saying that A is the answer। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सिंबल्स का पोजीशन चेंज होगा, तो यहाँ पर दिया गया है लेटर डी, अब ये इस वाले पार्ट में आएगा और उसका रिफ्लेक्शन बनेगा, सो विच इज करेक्ट इन ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, नॉट इन ऑप्शन नंबर बी, नॉट इन ऑप्शन नंबर सी एंड नॉट इन ऑप्शन नंबर डी, सो ए इज द आंसर। सिर्फ एक ही सिंबल का हमने रिफ्लेक्शन किया और हमें आंसर मिल गया। Next question, question number 27. Ma'am, my answer is option number B. Yes, very easy question. Option B is the answer. Next question. Ma'am, option number C is correct. ऑप्शन नंबर सी, यस, जेड का मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा और दोनों जो सिंबल्स है उनका पोजीशन भी जेड के साथ चेंज होगा, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फोल्डिंग अनफोल्डिंग। Yes.
तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बाद में मैं आंसर फिगर बताती हूँ. क्वेश्चन फिगर देख लिया आपने. यस नाउ दीज आर द ऑप्शंस. मैम ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट. क्योंकि देखिए पेपर को सीधे पकड़ के पंच किया है, देन यहाँ से फोल्ड किया है. फोल्ड करने के बाद ये वाला राइट वाला पार्ट लेफ्ट पर फोल्ड करेंगे. तो लेफ्ट पर जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो मिडल में एक सर्कल है, यहाँ पर मिडल में होना चाहिए. तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देना चाहिए, विच इज इन ऑप्शन नंबर सी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. मैम ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, सो सबसे पहले हमें इस डायरेक्शन में पेपर को अनफोल्ड करना होगा. सो ये जो दो डॉट्स है, ये दोनों डॉट्स यहाँ पर दोनों सर्कल्स आएंगे. फिर जब हम इसको यहाँ पर अनफोल्ड करेंगे तो 1 2 3 4, देन वाटर रिफ्लेक्शन निकालेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4. इस तरह से हमें सर्कल्स मिलने चाहिए, विच आर इन ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. मैम ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सबसे पहले तो यहाँ पर जो हाफ सर्कल बन रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे इन दिस डायरेक्शन. फिर इसको Yes. हमें अनफोल्ड करना है इन दिस डायरेक्शन. तो जो पूरा का पूरा सर्कल बना था, वो पूरा सर्कल यहाँ पर अनफोल्ड होगा. तो ऑप्शन डी की तरह यहाँ पर दो सर्कल्स होने चाहिए. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. कितने सर्कल्स होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑप्शन नंबर ए. Yes, option A is the answer. Next question, question number 33. Space visualization. Visualization. Option number A is correct. Option A, very good. Next question, question number 34. Ma'am, option number D is correct. You are saying that D is the answer. This is the first part, this is the second, this is the third. So, Yes. first part is visible in option number A, but I think it's smaller. Not in B, not in C. And in option D, it's visible. The next part is like this. एक अलग ही पार्ट बन रहा है जो फिट होगा ऑप्शन पार्ट 1 और पार्ट 3 के बीच. तो ये जो पार्ट है, ये हमें सही से दिखाई दे रहा है इन ऑप्शन नंबर डी. सो डी इज द आंसर. क्योंकि ऑप्शन ए में इसके जो एंगल्स है, बहुत शार्प एंगल बन रहे हैं, विच आर नॉट इन ऑप्शन, नॉट इन द क्वेश्चन फिगर. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओनली. और यहाँ पर जो एंगल भी बन रहा है ऑप्शन ए में, ये बड़ा है, जबकि क्वेश्चन फिगर में जो एंगल है वो थोड़ा सा छोटा एंगल बन रहा है. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. Ma'am, option number B is correct. You are saying that B. सबसे पहले हम पार्ट्स को ले लेते हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. Yes. अगर हम इस पार्ट के लेंथ की बात करें तो ऑप्शन डी में ये बड़ा है, सो एलिमिनेट कर दिया. ऑप्शन ए में कुछ डिफरेंट बना हुआ है, यहाँ पर एंगल्स बने हैं राइट दिस, विच आर नॉट इन द क्वेश्चन फिगर. ऑप्शन सी इज टोटली डिफरेंट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में सही से है. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. Just a minute. Yes. Ma'am, option number
मैम सी और बी वो डिफरेंस है थोड़ा बी में। बी या क्या क्या चेक करेंगे थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। चेक क्या करना है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्ट एंगल होना चाहिए इन द क्वेश्चन फिगर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस लाइन का साइज, इस लाइन का साइज और इस लाइन का साइज हमें कंपेयर करना है। अब हम देखेंगे कि इन द ऑप्शन नंबर सी दिस इज द स्मॉलर लाइन, इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू द क्वेश्चन फिगर। देखिए, आप ठीक से कंपेयर करके देखिए, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो छोटा दिखाई दे रहा है, यहां पर जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब यस ये जो लाइन है ना, ये लाइन थोड़ी सी इस तरह से क्रॉस बनी हुई है। सो विच इज इन ऑप्शन नंबर 2 बी ओनली। क्रॉस लाइन ऑप्शन बी में सही से दिखाई दे रही है। और क्या चीज हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है, ये हमें चेक करना होता है। इस डिस्टेंस के दोनों एंगल्स, मतलब इस तरफ का ट्रायंगल और इस तरफ का ट्रायंगल दोनों सिमिलर है क्या, ये चेक करना होता है। तो यहाँ पर ये एंगल हम जब बनाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर सही से बन रहे हैं। अब ऑप्शन 3 में बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से एंगल बना दिया तो ये वाला ट्रायंगल गलत बन गया, है ना। ये दोनों एंगल कैसे है, दोनों ट्रायंगल लॉन्गर है, लंबा है इसका लाइन, लेकिन यहाँ पर देखिए इतना सा ही एंगल बन गया अभी, यस तो ये एलिमिनेट हो गया, फिर ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया। हाँ ऑप्शन ए में भी बात करेंगे तो यहां से एंगल बना दिया तो ये देखिए ये वाला ट्रायंगल कितना छोटा बन गया, जबकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज आल्सो एलिमिनेट। और जो मेन थिंग है वो ये है कि ये वाली लाइन थोड़ी सी स्लैंट दी गई है, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी ओनली। ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ऑप्शन डी में ये वाले एंगल तो सही से बन रहे, लेकिन अगर यहां पर बात करेंगे दिस ट्रायंगल की, मतलब फर्स्ट पार्ट की, सो फर्स्ट पार्ट इज मच बिगर, राइट। यस सो जब फेस विजुअलाइजेशन का अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो साइज, पैटर्न, लेंथ, वहां के एंगल, उनका थोड़ा सा स्लैंट होना, सीधा होना, हर चीज को बारीकी से ध्यान दीजिए। स्पेस विजुअलाइजेशन में कभी कभी स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, और फाइनल मतलब जो फाइनल एग्जाम होती है उसमें ज्यादातर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे कंसेप्ट पर, रूल्स पर डिपेंड होते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर क्वेश्चन होते हैं, कोई मैस नहीं होता वहां पर, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है। और मेंटल एबिलिटी, ज्यादा टाइम आप यूज नहीं कर सकते हो, कम टाइम में करेक्ट क्वेश्चन तक जाना जरूरी है, ताकि बचा हुआ टाइम हमें मैथ में चाहिए। और मैथ में भी इतनी प्रैक्टिस करिए कि कम से कम टाइम में कौन सा भी क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है। अगर आप कम टाइम में रफ वर्क के साथ, रफ वर्क करना जरूरी है, रफ वर्क के साथ अगर क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो जो टाइम बचा हुआ है वो पैसेज पढ़ने में हमें यूज करना है, क्योंकि पैसेज में जितना आप सही से पढ़ेंगे उतना ही आप वहां पर करेक्टली पेपर सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को इंग्लिश के लिए टाइम कम मिलता है, और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में बाद में स्टूडेंट्स उन वर्ड्स का मीनिंग सही से नहीं लगा पाते हैं, वहां पर जल्दबाजी कर देते हैं, और सबसे ज्यादा स्कोर कट हो जाता है वो इंग्लिश में। आज तक का रिकॉर्ड है, फर्स्ट बैच में मेरे पास शौर्या और मानस बोल के 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों इंग्लिश में इतने परफेक्ट थे, जितना कि मैं खुद भी नहीं हूँ, इतना परफेक्ट थे। मानस ने बाद में स्कॉलरशिप के एग्जाम में, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, इंग्लिश में आउट ऑफ स्कोर लिया, आउट ऑफ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं,
लेकिन जब नवोदय का एग्जाम हुआ तो इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चन आई थिंक टोटल गलत हुए थे। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वहां पर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो फिक्स करके उतने टाइम में पेपर सॉल्व होना चाहिए। 2 मिनट इधर उधर चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन इंग्लिश के जो पैसेजेस है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलना जरूरी है। वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सिमिलर मीनिंग्स पर। आपने अभी जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, इन क्वेश्चन पेपर्स में आप देख रहे होंगे कि ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है। मतलब नाउन फाइंड आउट करो, एडजेक्टिव फाइंड आउट करो, या फिर दिए गए जो वर्ड है वो नाउन का है, एडजेक्टिव का है, वर्ब का है, आईएनजी जोड़िए, सेकंड फॉर्म बनाइए। लेकिन पिछले साल से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। पिछले साल नवोदय ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इन द क्वेश्चन पेपर, और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है वो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स पर फोकस किया है। नवोदय का पैटर्न हर कुछ सालों में चेंज होता रहता है। बीच के जो 4 साल थे वो 4-5 साल पूरे के पूरे ग्रामेटिकल क्वेश्चन पर, ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब पर बेस थे। अब जो पिछले साल से पैटर्न चेंज हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी है वो है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स को। तो कोई भी वर्ड आपको देंगे और उसका मतलब सेम मतलब होने वाला, मतलब सिमिलर मीनिंग, मतलब सिनोनिम हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा इस एग्जाम में। पिछली एग्जाम में भी यही हुआ था, इस एग्जाम में भी वही होगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में ग्रामेटिकल क्वेश्चन का सेम हुआ था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में जो कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को पूछा जा रहा था। तो सीधे 2 साल पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये भी पैटर्न कंटिन्यू होगा। तो सिमिलर मीनिंग पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। ओके मैम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। मैम इट इज एम्बेडेड फिगर क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, हमारे साथ कौन कौन ज्वाइन है जरा देखते हैं। प्रियांशी, अन्वी एंड आयुष। ओके, बाद में इंग्लिश का सॉल्यूशन इनमें से किसी से लेंगे। चलिए बताइए बेटा। मैम इट इज एम्बेडेड फिगर क्वेश्चन। यस, इट्स एम्बेडेड फिगर। मैम ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। You are saying that option C is the correct. Where is this pattern? Here. Yes. Option C is the correct answer. Next question, question number 38. Ma'am, option number A is correct. Yes, it's A. And where is the pattern? Here we can draw. Am I correct? Yes. कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2-4 जगह पर बनेगा ये ई, लेकिन यहीं पर बन रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। Ma'am, option number D is correct. You are saying that D is the answer and it's correct. ये वाला जो पैटर्न है ये ऑप्शन डी में बनेगा। कहाँ बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। ये है बड़ा वाला ट्रायंगल which is in the upper side and this is the smaller one. Right? Next Yes. question, question number 40, the last question of mental ability. Ma'am, option number B is correct. You are saying that B and it is the correct answer. कहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी में? तो यहाँ पर एक इस तरह से एंगल है, then these two lines, then this one angle. So here is the structure. Yes. ओके, तो इस तरह से मेंटल एबिलिटी हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। कौन बताना चाहेगा? प्रियांशी, आर यू देयर? यस प्रियांशी, स्क्रीन देख पा रहे हो बेटा आप? Yes, ma'am. So tell me the answer of the question. Here is the first question. In the passage, the author makes a plea for
Free education. No, ma'am. The education for girls. Hello, ma'am. तो Hello. Am I प्ली का audible? होता है, तो प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. ओके Yes. ओके, तो यू आर सेइंग दैट व्हाट इज द आंसर? Option number D. The education of girls. Question number 2. According to the passage, critics and educationists are worried that One of the object of NPE has not been fulfilled. option A is the answer. Question number 3. The national policy on education provide. Ma'am, it is A and B. It means option 1. It is saying only B. The national policy of education provide. चलिए पैसेज की तरफ देखते हैं. Where is the answer? The national policy on Policy education on education 1986, which is 96 held at 86 landmark in the Indian education system. provide A comprehensive framework to guide the development of education in country. in the country. So what are the options? Yes, ma'am, it is option number B. Yes, it's option number B. B. Next question number. Ma'am, development is a noun. डेवलपमेंट. ये देखिए, मैंने जो कहा ना, पिछले 3-4 सालों में जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे. पिछली टेस्ट में, मतलब पिछले साल के एग्जाम में, जब नवोदया ने सिलेबस चेंज किया, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कोई क्वेश्चन नहीं था. आपने देखा है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर? Yes, ma'am, 2025 का ना? हाँ. Yes, ma'am. उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कोई क्वेश्चन नहीं है. तो No, डेवलपमेंट, ma'am, भी नहीं है. यस, ये एक नाउन है. दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Yes. क्वेश्चन नंबर 5. मैम, इंडिपेंडेंस का अपोजिट डिपेंडेंस होता है. Yes. Next question number 6. There was a great deal of controversy about coffee. मतलब ma'am, my answer is option number D. You are saying that D, and it is the correct one. Next question number 7. Coffee is certainly not a poison when it is, ma'am, to adults in moderation. Okay, so option C is the answer. Question Yes. number 8. Many doctors read the following alternative. मैम, वो chronological order मतलब. Hello, ma'am. Yes बेटा, बताइए ना क्या हुआ. Ma'am, what is the meaning of chronological order? आप गेस कीजिए, उसके बाद मैं समझाती हूँ. Okay, ma'am. Ma'am, the coffee was ma'am first होगा. Coffee was first introduced in Europe, then coffee houses sprang up everywhere. Many doctors announced coffee as a strong poison. Coffee can produce toxic effects in children. Then option number B आएगा. You are No, saying ma'am, that option number A. Option number you are A. the answer. अब देखिए, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है कि कई बार कोई वर्ड्स ऐसे दिए जाते हैं जिसका हमें मतलब नहीं पता होता है. आपके बुद्धियांक से थोड़ा सा ज्यादा लेवल का वर्ड दिया जाता है जो आपने कभी सुना ना हो, या फिर आप देखा नहीं हो कहीं पर, लेकिन यू कैन गेस, आप गेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता था, लेकिन इन ऑप्शंस को देख के आपने गेस किया कि इसको टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है कि सबसे पहली चीज कौन सी हुई थी.
तो 3 नंबर का कप कॉफी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, सबसे पहले तो ये हुआ था। तो आपने उसको एक सीक्वेंस में लगा दिया। अभी इस वर्ड का मतलब भी वही है कि इसको बोलते हैं हम काल के क्रम के अनुसार लगाना। काल का क्रम मतलब टाइम बेस लगाना है कि किस मैम टाइम, मतलब सीक्वेंस वाइज लगाना है। लेकिन टाइम के सीक्वेंस से कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डर। ओके। अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर बाकी की चीजों को देखकर उसको गेस करना जरूरी है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी पढ़ाई करके जाए, कोई एक तो वर्ड आपको ऐसा फाइनली मिलेगा ही मिलेगा जो आपको पता नहीं होगा। तो गेस करना, सही गेस करना वहां पर जरूरी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Ma'am, coffee was first introduced in Europe. Yes. What is the Option number meaning of the word controversy? Controversy, sorry. Controversy. a lot of disagreements about something. Yes. मैम बट मैंने डी किया था। क्या किया था बेटा आपने? मैम मैंने डी किया था तो मेरा रॉन्ग आया। To make something known publicly, नहीं। कंट्रोवर्सी क्या होता है कि बहुत बार हम न्यूज में भी चल देखते हैं कि इस बात पर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, गवर्नमेंट ने ये वाली चीज अप्लाई करने के लिए कहा तो बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी हाँ। मतलब जो भी चीज, जो भी बात वहां पर उठाई गई है उससे बहुत सारे लोग डिसअग्री हो, वहां पर उलट सुलट इस तरह से बातें हो रही हो कि नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट इन द करेक्ट वे। तो इस चीज को उठाना मतलब कंट्रोवर्सी होता है। तो ओके कॉफी मैम। के बारे में वही कुछ हो रहा था कि कई लोग कह रहे थे दिस इज गुड, कई लोग कह रहे थे नो दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना, यस। ऐसी यही चीज है। सो कंट्रोवर्सी होना मतलब डिसएग्रीमेंट होना, इसको हम कंट्रोवर्सी कहते हैं। जब भी पैसेज में ऐसे वर्ड्स मिले ना, इनको पक्का आपके जो फॉर्मूलाज के नोटबुक आपने बनाए हैं ना, उसमें ये वर्ड्स यस। लिख लीजिए, इसके मतलब लिख लीजिए। सिमिलर मीनिंग में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है ना कि हम सिमिलर मीनिंग वर्ड सिनोनिम्स याद करते हैं, लेकिन सिनोनिम्स में जो वर्ड्स होते हैं उसके अलावा ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका हमें करेक्टली मतलब समझना जरूरी होता है। तो जितने हो सके ऐसे वर्ड्स ना आपकी फॉर्मूलाज की नोटबुक में लिख लीजिए और उनको रोज पढ़िए। याद नहीं करना है, रोज पढ़ना है, रिवीजन जरूरी है, याद नहीं करना। ओके, ओके चलिए। थैंक्स मैम। वन If June 1978 was the anniversary of when Mount Everest scaled, now it is 1978 was the 25th anniversary. When was sorry Mount Everest scaled? 25th एनिवर्सरी कब आ रही है? or 19 1978. को। तो बॉर्न कब हुआ था, मतलब स्केल कब हुआ था माउंट एवरेस्ट? मैम 25 साल पीछे जाना होगा। यस मैम। ये ऐसे है ना कि अभी आप 25, मतलब अभी 2025 चल रहा है, तो अभी आप 25 ईयर्स के हो, तो आपका बर्थडे कब होगा? इस तरह का क्वेश्चन है मैम ना। 25 ईयर्स पीछे जाना होगा। यस, तो 25 माइनस करना होगा, तो आंसर क्या यस मिलेगा? मैम ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी। हाँ, 1978 से 25 ईयर्स आप माइनस करेंगे। चलिए माइनस कीजिए। 8 माइनस 5 3 7 माइनस 2 5 and 19 and as the it is. 19 as it is. So you are saying that what is the answer? 1953 means B. Yes. तो ये तो मतलब थोड़ा सा मैथ बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना। यस। यस, तो करना होगा, क्योंकि वहां पर ये नहीं चेक किया जाता कि सिर्फ आपने पढ़ाई कितनी करी है, प्रैक्टिस कितनी करी है। वहां पर ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप उस सिचुएशन को टैकल कैसे करते हो, क्या सोचते हो उस सिचुएशन में। नेक्स्ट Okay, क्वेश्चन, ma'am. क्वेश्चन नंबर 12. Why Mount Everest
Ma'am, it's 13. Why Mount Everest called roof of the world? Ma'am, because it is difficult to scale it, or because it is high peak in the world? You are confused? Yes, ma'am. Okay, so let's see the answer first. B, because it is the highest peak of the world. Let's see in the passage. The question is why is Mount Everest called the roof of world? Roof of world का मतलब क्या होता है बेटा? मैम मतलब सबसे ऊंचा. हाँ, छत. रूफ को हम छत कहते हैं, राइट? तो वर्ल्ड Yes. का छत, वर्ल्ड का छत हम किस चीज को कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं. तो छत सबसे ऊंचा होता है. अगर होम है तो घर का छत सबसे ऊंचा होता है. वेयर इज द आंसर? लेट्स सी. It is a great peak of Himalaya mountain in North India. मैम वो लास्ट में है रूफ ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा वर्ड. Let's see. The news last around the world. नीचे. यार मैम वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर क्या बताया गया है? set foot upon the roof of the world and look down from height of 848 meters. मतलब उन्होंने क्या किया? सबसे ऊंचे पीक पर चढ़ गए और वहां से नीचे इतने हाइट पर किया. इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे ऊंचा पार्ट है. दैट्स व्हाई हम हाइट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे. दैट बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ये सबसे ऊंची हाइट वाला पीक है जिसकी हाइट कितनी है? 8,800 मीटर. ओके, बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ये थोड़े से पिछले क्वेश्चन से, मतलब पिछला जो आपका टेस्ट पेपर था उसमें बहुत आसान से पैसेजेस थे. इसमें थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, राइट? वेयर इज द माउंट एवरेस्ट? हेलो मैम. वेयर इज द माउंट एवरेस्ट? मैम इन हिमालयास. Where is in northern India. In northern India. Option C is the answer. Question number 15. What is the form of work? मैम पास्ट फॉर्म ना, तो वर्क का आएगा. वर्क मतलब ईडी लगाना होगा आगे. लगाना होगा बिकॉज इट इज अ रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब में क्या होता है? तो ईडी फॉर्म लगता है, ईडी सफिक्स लगता है और पास्ट फॉर्म होता है. और जो वर्ब्स होते हैं ना जिसमें ईडी नहीं लगता है, लाइक गो, वेंट, गॉन, these are totally different. buy, bought, these are different. तो जिसमें ईडी लगता है, कभी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए. अगर किसी वर्ब को ईडी लगाकर, मतलब सफिक्स ईडी लगाकर अगर समझ लीजिए उसका पास्ट फॉर्म बन रहा है, तो इनको रेगुलर वर्ब कहिए. क्या कहिए? रेगुलर वर्ब. ईडी नहीं लग रहा है, कुछ अलग तरह से उसका पास्ट फॉर्म बन रहा है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल. नहीं, उनको कहते हैं इनरेगुलर वर्ब्स. इनरेगुलर, रेगुलर मतलब different types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Okay. Okay, ma'am. Question number 16. Which of the following statement is from Ma'am, baseball originated as per the passage, na? Yes. Hello, ma'am. Yes. तो हर एक क्वेश्चन के आगे ना एक छुपा हुआ वर्ड होता है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज. मैम यस मैम. मैम तो हमें पैसेज में ही दिया है कि वो जो बेसबॉल था वो ब्रिटिश गेम है सर. तो फिर हमें तो ऑप्शन नंबर सी होगा. ओके, यस, ऑप्शन सी इज द आंसर. कहीं पर ऐसे दिया है, सो यस दिया है. हियर इज
Other ma'am. things, baseball come from the old British sport Sport called rounders. rounders. Question number 7. 17. देखिए, जब भी ना क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं लाइक आर इनकरेक्ट एज पर द पैसेज। जब हम वहां पर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो गलती से कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और इनकरेक्ट को करेक्ट बोल देते हैं और गलती से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा होता है। पढ़िए, कभी इनकरेक्ट कहेंगे, कभी नॉट करेक्ट कहेंगे, ओके, कभी कभी कहेंगे मतलब नॉट जैसे वर्ड जो है वो यूज करेंगे तो हमें ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, हमें सही पॉजिटिव। चूज करना है कि गलत स्टेटमेंट चूज करना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिए और देन आंसर कीजिए। आंसर करते टाइम लास्ट के ऑप्शन तक क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स है और यहाँ पर ऑप्शंस है। कई बार स्टूडेंट इन्हीं को ऑप्शन समझ लेते हैं और ABCD में से एक फाइंड आउट कर देते हैं, नीचे देखते ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि A ऑप्शन दिया जाता है, B ऑप्शन होता है, C ऑप्शन होता है और नीचे होता है ऑल करेक्ट। यस मैम, ऐसा होता है। क्या करते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना होता है, ए तो करेक्ट होता है, हम ए को सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन नीचे होता है ऑल करेक्ट, मतलब ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, तो हम यहाँ करेक्ट। तक पहुंचते ही नहीं है। तो यहाँ तक पहुंचना जरूरी है। अगर ए स्टेटमेंट करेक्ट है फिर भी आंसर कौन सा सही है, सो ऑल करेक्ट। यस। यस, व्हाट इज द आंसर? Batters wear special gloves to protect their hands. Catcher wear marks. मैम इनकरेक्ट बोला है ना, तो बी आएगा मैम। बी आएगा, मतलब A, C and D। यस, ओनली स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, सो सी को हम एलिमिनेट करेंगे और ए बी और डी, नो नो, ए सी और डी सिर्फ सही है। हाँ, तो ए सी और डी इन तीनों स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, दैट दिस आर द इन द आंसर बिकॉज दिस आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। यस। अब choose the correct statement related to the baseball and rounders। यहाँ पे करेक्ट बोला है, तो today's baseball player is special improvement to make better। बी इज द आंसर हियर ऑल्सो। यहाँ पर हमें करेक्ट यस मैम, स्टेटमेंट, बी आएगा। तो एक और चार स्टेटमेंट सही है। ये जो पैसेज है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगने वाला है, समझने में बहुत टाइम लगने वाला है। और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन इसमें है। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अभी तक हमने 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट के ही देखे, तो इसको हम हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं। इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, लेकिन तैयारी हम हाईएस्ट की करेंगे तो हमें कोई भी क्वेश्चन पेपर आए डर नहीं वहां पर। ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ थिंग? मैम इट्स थैंक, नो मैम, थैंक नहीं, सॉरी, पास्ट फॉर्म बोला है ना, तो थॉट आएगा। थॉट आएगा, एंड इट मींस इट तो वो थैंक यू का होता है। ये इररेगुलर वर्ब है। यस मैम। थिंक, थॉट, थॉट, नो राइट, मैम, थॉट ही आएगा। यस। थॉट आएगा, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। एंड द वो लास्ट, थ्रॉट तो थ्रो का होता है ना। हाँ, प्लेयर्स वेयर बेसबॉल ग्लोव्स टू प्रोटेक्ट देयर हैंड्स। प्रोटेक्ट देयर हैंड्स, हाथ में हैंड ग्लोव्स पहने जाते हैं तो हाथ को ही प्रोटेक्ट करेंगे बेसबॉल में। सो बी, सॉरी, डी इज द आंसर। तो इस तरह के ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज सॉल्यूशन में कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद मैम हम,
हाँ बेटा बोलो। हेलो मैम, कल आप 7 बजे फिर से लोगे क्या? या तो रात में ले लेंगे सॉल्यूशन, मतलब रात में मतलब नॉट एग्जैक्टली रात, इवनिंग में आफ्टर 8:30 या फिर 9:30, या फिर मॉर्निंग में इस टाइम पर ले लेंगे। थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया करो, अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो ज्वाइन हो जाना। मैम और ठीक है। आज थर्सडे है तो फिर हमारा रात को 7 बजे क्लास होगा ना? हाँ तो क्लास होगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का मतलब क्वेश्चन पेपर 6 का सॉल्यूशन हम लाइव लेक्चर में ही ले लेंगे। ओके मैम। ओके चलिए, ओके, so bye, have a good day, बाय मैम। have a good day everyone, bye bye। ओके आराध्या, कोशिश करूंगी बेटा। बिकॉज व्हेन यू टेक क्लास आई एम इन माई स्कूल। नहीं बेटा, मैं तो स्कूल के टाइम में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैथ का होता है दोपहर में सॉल्यूशन। अभी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़ रहे तो टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। ओके चलिए।